Hello everyone, this is Parul Goel from Infinity Vision. आज इस KVPY session में I'm going to begin a topic. Actually, I have brought some questions from the topic which is the human physiology first chapter, that is human digestion or nutrition. So in today's session, we are going to discuss few questions based on the first topic of human physiology of class 11th, that is animal nutrition. Right? So we are going to discuss few questions, but the criteria, you all know that there are 60 questions in part 1, 15 from each subject, and then the 20 questions are there, 5 from each subject. So total questions from bio, you will get it, that is 20 questions. And in today's session, we are going to begin with the discussion of the topic nutrition with the help of few MCQs. So should we begin? चलिए स्टार्ट करते हैं. आवर फर्स्ट क्वेश्चन लिटिल ट्रिकी. इन ह्यूमन डाइजेशन इज इंटरसेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर, एक्स्ट्रासेल्यूलर और बोथ ए एंड बी? यस, एनी वन ऑफ यू कैन आंसर. व्हाट विल बी द काइंड ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस? इंटरसेल्यूलर, इंटर का मतलब होता है बिटवीन द सेल्स. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स जस्ट So this means between the cells. Yes. So this means between the cells. So anyone of you can answer? What will be the correct answer of this question? Intra means within the cell के अंदर, right? Extra means outside the cell. So what matches with the question which says, Kush is saying extracellular? Absolutely correct, beta. Why extracellular? Because humans have a proper alimentary canal or the digestive cavity. है ना, हमारे पास तो प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव कैविटी है. दैट मीन्स दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ टू एनस. सो डेफिनेटली द डाइजेशन विल टेक्स प्लेस एक्स्ट्रा सेल्यूलर, है ना. ध्यान रखनी है ये बात हमको, that because we have the proper alimentary canal, proper digestive system, that is one of the organ systems present in human, and that is why we have a tube-like structure starting from mouth, ending up to anus. So hence, the digestion in humans are extracellular, right? It will not be between the cells, it will not within the cells, it will be extracellular. Absolutely correct, beta. चलिए next question पे आ जाते हैं. What does, just a second, what happened to this? Yes, we got it. Question number 2 says the enzyme renin converts. Renin is an enzyme that converts. Yes, Kush, you're right, बच्चे. रेनिन क्या काम करता है? यू नो, रेनिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम. रेनिन क्या है? रेनिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम. एक बहुत ही स्पेसिफिक फीचर इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए. क्वेश्चन कैन बी फ्रेम दैट बेसिकली इट इज गोइंग टू डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन. This is the specific enzyme which is going to digest the milk protein, right? Actually, there are two enzymes which is secreted by the cells of your stomach, that is pepsin and renin. Pepsin पे कई बार questions हम पहले भी discuss कर चुके हैं. There are few questions already in the exams of KVPY in the earlier sessions. So pepsin is an enzyme that digests protein undoubtedly, but then renin is also an enzyme which digests protein, but that protein should be milk protein. And a very specific point about renin, one is milk protein, it digests. Second is it is present generally in the digestive juice or the digestive juice of infants. Infants, बच्चे जनरली क्या, they are dependent on milk. So that means इनका intake milk का बहुत ज़्यादा होता है. That means there must be some enzyme which can digest the milk protein. And that is why in the digestive juice of infants, this enzyme is present.
right? So renin acts on milk protein and it is generally present in the digestive juice of infants. With the advancement of age, its secretion goes on decreasing. Another important point, with the advancement of age, its secretion goes on decreasing. ठीक है, तो ये हमें 2-3 बातें याद रखनी है. And when I'm saying it digests milk protein, so milk protein is definitely it is season. So it converts season into para-season, right? This is one equation with the help of the renin enzyme. Then this para-casein with the presence of in the presence of calcium ions will convert into para-seasonate. ठीक है, and then this para-seasonate then we finally digested into peptones and proteoses with the help of this enzyme only, that is, I have written over here pepsin. That means even the milk protein is finally digested by pepsin, but the initial action of the enzyme that digests season, that is milk protein, that will be renin. तो इससे हमें completely ये बात clear होती है कि pepsin is the protein that digests all the proteins, but the initial action for the digestion of milk protein will be given by renin. So that is why we say कि renin is the enzyme that is present generally in the digestive juice of the infants that digest milk protein. I guess बात समझ आ गई होगी सभी को. Next question. Digestion in amoeba, intercellular, intracellular, both of these, none of these. We know that amoeba is what? अगर हमें इतनी बात मालूम है that amoeba is unicellular organism, है ना, तो हम 1 सेकेंड में इसका आंसर बता देंगे. अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोन है. तो इंटर मैंने आपको अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में दैट इट इज बिटवीन द सेल्स. सो बिटवीन द सेल्स का तो मतलब ही नहीं बनता बिकॉज द ऑर्गेनिज्म इज वन सेल्ड. ठीक है, एंड देन बोथ ऑफ दीज भी गलत हो गया, राइट. तो ए और सी तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए व्हेन वी नो दैट अमीबा इज यूनिसेलुलर, right. Intracellular means within the cell. We have discussed this earlier in previous question. तो सेल के अंदर ही डाइजेशन होगा एक सेल का ऑर्गेनिज्म and it is going to take place within the cell, right. So our correct answer will be intracellular. Simple सा question है. Okay, moving on to next one. Yes, this is little tricky. If you know about the digestion little bit, then only you can able to answer this question. There are few statements you have to tell that what are true and what are false. First is no absorption of food takes place in mouth and esophagus. Second is absorption of water, alcohol, simple salts, glucose and chloride ions takes place in the stomach to slight extent. Whole proteins particle can be absorbed by the pinocytosis. अब आपको ये बताना है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं और कितने गलत हैं. How many of these are true and false? So first is saying no absorption of food takes place in mouth and esophagus. Absolutely right statement. खाने का कभी भी absorption नहीं होता. Instead, absorption की बात नहीं करेंगे when we talk about the food, mouth. We say digestion. है ना, as we intake the food, digestion of carbs start in mouth. कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. लेकिन एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो वो गलत बात है. कोई भी एब्जॉर्प्शन माउथ में नहीं होता, ना ही ईसोफेगस में होता है. एंड ईसोफेगस में तो इवन डाइजेशन भी नहीं होता, है ना. ईसोफेगस में नथिंग टेक्स प्लेस, नीदर डाइजेशन नॉर एब्जॉर्प्शन. ओनली द पार्टली डाइजेस्टेड फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बिकॉज इट इज अ फूड पाइप. ठीक है, तो डाइजेशन होता है सिर्फ कार्ब्स का माउथ में. एंड विच कार्ब आई हैव टोल्ड यू, इट वाज स्टार्च विच इज बीन डाइजेस्टेड एंड फॉर्म मैल्टोज. ठीक है, कई बार इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस सेशन बिकॉज देर आर फ्यू क्वेश्चंस विच इज ऑलरेडी देयर इन द KVPY प्रीवियस एग्जामिनेशंस पेपर. ठीक है, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है. बट देर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द माउथ एंड इसोफेगस. सो दैट वाज आवर करेक्ट स्टेटमेंट. सेकेंड देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, alcohol, simple salts,
glucose and chloride ions takes place in the stomach to slight extent. ये बिल्कुल ठीक बात है. पानी भी, alcohol भी, simple salts, glucose, all of the things can absorb in your stomach to a slight extent. Absolutely correct statement. तो अगर हमें इतनी बात मालूम है that first and second are correct, तो हमारे दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. ठीक है, ऑल ट्रू की बात नहीं कर रहे हैं अभी. फर्स्ट एंड थर्ड ट्रू बोल रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. इसमें सेकंड इज गिवन एज फॉल्स, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया. ठीक है, थर्ड पे देख लेते हैं. होल प्रोटीन्स पार्टिकल्स कैन बी एब्जॉर्ब बाय पिनोसाइटोसिस. अब इस ऑप्शन को समझने के लिए यू शुड नो व्हाट इज पिनोसाइटोसिस. यू नो देयर आर टू प्रोसेसेस दैट इज कॉल्ड एज, नंबर वन इज पिनोसाइटोसिस एंड द अदर इज फेगोसाइटोसिस. तो इसका क्या डिफरेंस है दोनों का? यू नो, फेगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस इन विच द एनगल्फिंग ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन देयर सॉलिड फॉर्म. अगर हम फूड को एनगल्फ कर रहे हैं एज अ होल इन देयर सॉलिड फॉर्म, तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फेगोसाइटोसिस. और पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या है? व्हेन वी आर एनगल्फिंग द फूड इन इट्स लिक्विड फॉर्म. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रोसेसेस, दैट इज पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस. अब ऑप्शन क्या बोल रहा है आपसे कि होल प्रोटीन पार्टिकल्स कैन बी एब्जॉर्ब बाय पिनोसाइटोसिस? नो. Actually what happens there is the, you know, food is being taken and then the enzymes is being produced inside the alimentary canal or your digestive cavity. Then it is being digested and then it is being absorbed. First the food is being digested, then it is being absorbed by the process of the phagocytosis. We take the food in its whole form. That means we take the food in its solid form. All proteins cannot be taken as in their liquid form. है ना, हम कुछ भी खाते हैं चीज वो सॉलिड फॉर्म में होती है, विच हैज अ प्रोटीन्स इन इट. सो वी कैन नॉट से दैट होल प्रोटीन्स पार्टिकल्स कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय पिनोसाइटोसिस. सो दैट इज व्हाई दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. हेंस क्या बनेगा हमारा ऑप्शन? फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू एंड थर्ड इज फॉल्स. सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4. तो इससे आपको ये भी चीज़ पता चल गई कि एब्जॉर्प्शन स्टमक में हो सकता है किन किन चीज़ों का, प्लस हम कोई भी न्यूट्रिएंट को कंप्लीट लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. इट शुड बी एब्जॉर्ब इन फेगोसाइटोसिस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. व्हाट इट सेज, स्टमक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम HCl एंड गैस्ट्रिक जूस बिकॉज, है ना, वी नो दैट स्टमक का मीडियम क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है. क्यों एसिडिक इन नेचर होता है? बिकॉज द HCl इज प्रेजेंट देयर. अब HCl वहाँ पे क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज यू नो प्रोटीन्स का चीफ साइट है डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स. द स्टमक इज द चीफ साइट ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स. तो and the proteins can only be digested in highly acidic medium, so that is why HCl should be present here, है ना. तो क्या क्वेश्चन बोलता है? स्टमक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम HCl एंड गैस्ट्रिक जूस. किस तरह से प्रोटेक्ट रहता है? दो द मीडियम इज हाईली एसिडिक. नहीं, Sahil, C is not correct. Yes, Abhishek, Tanishq, you two are correct. They are saying option number D. Absolutely, this one is the right answer. Stomach lining is covered by mucus. Neutralizing agents नहीं बोलेंगे, but then it is covered by mucus, है ना. तो HCl कौन से cells बनाते हैं आपके stomach के? That is oxyntic cell. ये ध्यान रखेंगे हम बात. Question बन सकता है, right? Which of the following cells keeps a medium acidic of the stomach? That is the oxyntic cell because it secretes HCl. ठीक है, एक तो हम ये चीज़ याद रखेंगे. एसिडिक क्यों होता है मीडियम? बिकॉज प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं वहाँ पर और प्रोटीन्स कैन ओनली बी डाइजेस्टेड इन दी हाईली एसिडिक मीडियम, राइट. आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्टमक की वॉल प्रोटेक्ट कैसे रहती है? बिकॉज वेरी हाईली एसिडिक मीडियम इज प्रेजेंट. तो फर्स्ट ऑप्शन है द टू आर डाइल्यूट. नो. एपिथेलियल लाइनिंग इज रेजिस्टेंट टू देम. बिल्कुल गलत बात, ऐसा नहीं है. Wall has the neutralizing agent. This is not even true. Stomach lining is covered by mucus, है ना. अगर आपने elementary canal, yes beta, ma'am, yes, okay, yes, that is true Sahil, but then mucus is the, you know, substance that is being. अगर आपने histology
के बारे में थोड़ा सा एलिमेंट्री कैनाल का पढ़ा है तो यू मस्ट बी नोइंग दैट देर आर 4 लेयर्स प्रेजेंट फ्रॉम द आउटर टू द इनर, है ना. आउटर से अगर हम स्टार्ट करेंगे, सो इट वाज सेरोसा लेयर. Next to the serosa, it is muscularis layer, and next to muscularis, it is the submucosa, and then the innermost one is the mucosa, right? So mucosa is the innermost lining of the stomach. हम क्या बोल रहे हैं? Wall has neutralizing agent. तो ये बात गलत हो गई. The wall of the stomach is not has neutralizing agent. The innermost lining of the stomach is actually mucous membrane. So because of this mucus, it actually prevents the stomach lining from deterioration of the acidic medium provided by HCl. ठीक है, तो म्यूकस क्योंकि लाइन करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, द म्यूकस इज प्रेजेंट, दैट इज व्हाई इट्स इनर लाइनिंग इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एसिडिक मीडियम. बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है हमें ये बात. ये बहुत सारे फॉर्म में ये क्वेश्चन कई बार पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ है. तो प्लीज डू रिमेंबर दैट इट इज बीन प्रोटेक्टेड बिकॉज स्टमक लाइनिंग इज कवर्ड बाय म्यूकस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ओके, इन अ villus some of the glycerol and fatty acids combine to form fats coated with proteins and then transported to the, है ना. विलस मतलब विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट, है ना. You have finger-like projections in your small intestine and that is called as villi. क्यों present होती है ये भी आपको पता होना चाहिए. Important point, question can be framed to increase the surface area for absorption near about 600 times, है ना. तो कैसे लिखेंगे? To increase the surface area for absorption around 600 times. तो ये एक तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि विलाएं आपकी थ्रू आउट दी स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज प्रेजेंट बिकॉज वी नो दैट स्मॉल इंटेस्टाइन इज द चीफ साइट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ एवरी न्यूट्रिएंट. ठीक है, तो उस एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करने के लिए देयर आर दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज विलाई. तो विलाई में क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म फैट्स. बिल्कुल सही बात है ना. ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स कंबाइन कर जाते हैं टू फॉर्म फैट्स coated with proteins. This is very important क्योंकि देखो fats are insoluble in water and blood का composition is basically water. तो fats could not be soluble in water or in blood. So that is why what happens, this fats is coated with proteins. You know, एक line आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, men in disguise. तो ये fats भी वही है. These are actually what? These are coated with proteins. और इस type के fats को which is coated with proteins हम क्या बोलते हैं? Chylomicrons. Important point, है ना. तो बेसिकली व्हाट आर काइलोमाइक्रोन्स? काइलोमाइक्रोन्स आर लिपोप्रोटीन्स, है ना. लिपोप्रोटीन्स क्यों बोल रही हूँ मैं? बिकॉज फैट्स कोटेड विद प्रोटीन, सो दैट इज वाई लिपोप्रोटीन्स एंड द टर्म गिवन टू सच प्रोटीन्स आर काइलोमाइक्रोन्स. तो कहाँ पे सिक्रीट हो रहे हैं? ये विलस में हो रहे हैं, विलाई में हो रही है आपकी, एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू दी, है ना. तो अब आपको ये बताना है बिकॉज वी नो कि वट एवर दी एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट इट मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू दी ब्लड, है ना, सो दैट इट कैन बी कैरिड टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. तो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? नंबर 1 ऑप्शन इज लेक्टियल्स, B इज कैपिलरी, C इज ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन and D is lumen of the large intestine. D is lumen of the large intestine. तो आपको ये बताना है चारों में से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. अब देखो लैक्टियल्स की बात कर लेते हैं. लैक्टियल्स क्या होते हैं? You know, lacteals are the lymphatic vessels. These are the lymphatic vessels. ये बात आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, lymphatic vessels हैं and this chylomicrons, which is fat coated with proteins, these are transported to the lacteals present in the villi. तो हमें ये भी ध्यान रखनी है ये कहाँ present होंगे? villi में present होंगे, right? So these are transported to the lymphatic system, lymphatic vessels present in the villi, and then it is being transported to the blood into the blood circulation, so that your fats can be carried out to the different organs of the body for their metabolic activities. So आपको ध्यान रखना है, this is not
not through the blood capillaries it is being transported, it is transported to the lymphatic vessels, and the lymphatic vessels are lacteals. So it's important point. Please do remember this, ki how fats have been transported to the bloodstream with the help of the lymphatic vessels, that is lacteals. चलिए आगे आ जाते हैं. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अमंग मैमल्स एंड हार्बीवोर हैज. हार्बीवोर के इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए वी शुड नो व्हाट आर हार्बीवोर, एंड आई गेस एवरीवन इन द क्लास नो दैट हु आर हार्बीवोर्स ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स. दीज आर हार्बीवोर्स. कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? हार्बीवोर्स आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, है ना. तो ये बात हमें ध्यान रखनी है. एक तो ऑप्शन ए सेज मोर टीथ देन कार्निवोर, फ्यूअर टीथ देन कार्निवोर, फ्लैटर टीथ देन कार्निवोर, टीथ आर मोर पॉइंटेड देन अ कार्निवोर. देखो ये इसमें ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन इज सी. एंड व्हाई इट इज सी? यस अभिषेक, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे. दे हैव अ फ्लैटर टीथ देन अ कार्निवोर. क्यों होता है फ्लैटर टीथ और देन अ कार्निवोर? बिकॉज बेसिकली व्हाट हैपेंड, दे हैड टू डिपेंड, हार्बीवोर हैड टू डिपेंड ऑन प्लांट ईटिंग एनिमल. So these are basically they have the molars which has the flatter teeth, and molar are generally used for grinding. ठीक है. एंड प्लांट का जो प्लांट खाते हैं, प्लांट का जो सेल होता है, इट इज वेरी रिजिड इन नेचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल. सो देयर मस्ट बी प्रेजेंट समथिंग विच इज फ्लैटर इन नेचर, सो दे कैन grind the thing properly, so they can have it. So for that grinding purpose, the molars are generally flatter in case of herbivore because they are dependent on the food which is very hard in nature, and food is plant, and we know that plant has the cells which is having a cell wall which is very very rigid in nature. So it is very, it takes time, or it takes some forceful thing that could be, that the things could be grinding properly. So for that grinding, the teeth should be flatter, and herbivore generally has flatter molar than a carnivore. ठीक है. कार्निवोर की बात करें, कार्निवोर जो होते हैं दे आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. सो बेसिकली उनमें क्या है, फ्लैश ईटिंग के लिए ऐसे टीथ होने चाहिए विच कैन एबल टू टीयर द थिंग प्रॉपरली, फोर्सफुली उसको अच्छे से टीयर कर सके. दैट इज वाई कार्निवोर में द फ्रंट टीथ आर वेरी मच डेवलप्ड, so that they can tear, because the front teeth, incisors and canines are generally for tearing purpose. So in carnivores, tearing incisors and canines are much developed, and in case of herbivore, this molar teeth are much developed because molars are generally used for grinding the food particle. Right? चलिए next question पे आ जाते हैं. Gastric juice has pH of about. Very simple. What will be the answer? Gastric juice of pH, है ना. गैस्ट्रिक जूस कहाँ प्रेजेंट होगा? आपके गैस्टर में. गैस्टर क्या होता है? What is gaster? Can any one of you tell me what is gaster? Gaster is your stomach. अब तो आंसर मिल गया होगा डेफिनेटली इफ आई टोल्ड यू अबाउट दैट gaster is your stomach. Yes, no, not one ojas, it is not one even. तो गैस्टर को हम स्टमक बोलते हैं. स्टमक का मीडियम हाईली एसिडिक होता है. अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा तो कितना पीएच होता है? इट विल बी अराउंड 2 और 1.8. ठीक है. 1 इज नॉट द आंसर, बट 2 अराउंड 1.8 इज द एसिडिक मीडियम ऑफ द स्टमक. तो हम 2 पे ऑप्शन पे जा सकते हैं. आवर ऑप्शन विल बी 2, एंड वी नो दैट why acidic medium is required, because of the digestion of the proteins, as I told you earlier in the previous question. Okay, moving on to next. Yes, this is the question about the disease, है ना. Softness and deformities of bones like bow legs and pigeon chest are symptoms of the disease, है ना. अब ये rickets, osteomalacia, goiter and beriberi, तो आपको बताना है कि ये कौन से सिम्टम्स हैं. आई मीन दीज आर द सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज. तो देखो ध्यान रखनी है एक तो हमें एक बात कि जब हम सॉफ्टनेस और डिफॉर्मिटीज ऑफ बोन्स की बात कर रहे हैं तो हमारा 2, यस कुछ इज सेइंग ए, एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे. इट इज द ए आंसर. द करेक्ट वन इज ए.
बिल्कुल ठीक बात। देखो ये तो तुम लोग को मालूम ही होगा, गोइटर यू मस्ट हैव हर्ड वेरी मच, वेरी वेरी भी यू ऑल्सो हैव हर्ड कि दीज आर नॉट द डिजीज ऑफ द बोन्स। गोइटर बोन्स का डिजीज नहीं है, नीदर बेरी बेरी, है ना। विल डिस्कस इन अ मिनट कौन किस टाइप का डेफिशिएंसी से ये डिजीज होता है। बट देन सॉफ्टनेस एंड डिफॉर्मिटीज ऑफ बोन्स लाइक बो लेग्स। बो लेग्स का मतलब होता है कर्व्ड लेग्स, है ना, मतलब लेग्स में आपका बहुत वीकनेस है, कर्व लेग्स हो गए हैं। एंड देन व्हाट डज दिस मीन? पिजन चेस्ट। पिजन चेस्ट मीन्स द चेस्ट विच इज पुशेस फॉरवर्ड जस्ट लाइक द चेस्ट ऑफ द एव्स, बर्ड्स, है ना। तो आपने सबने बर्ड्स देखा होगा, उनका चेस्ट जो होता है थोड़ा सा आगे को निकला होता है, तो हम कैसे बोलेंगे? पुशेस फॉरवर्ड, ठीक है। तो पिजन, वाई, दैट इज वाई द वर्ड इज पिजन चेस्ट, right? So this is a characteristic features of the aves, that is the chest is little bit pushes forward, right? Bow legs means curved legs, क्योंकि legs में बहुत इतना ज़्यादा if a person is suffering from the disease, so legs becomes weak, so that is why it takes a little shape, it takes a shape of a curve, hence it is called as bow legs or curved legs, ठीक है। तो ये कौन सी disease के symptoms है? It is rickets, osteomalacia, goiter and beriberi। बिल्कुल आंसर इज rickets। रिकेट्स के सिम्टम्स है हमारे ये। रिकेट्स एक्चुअली होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी, है ना। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। अगर विटामिन डी का डेफिशिएंसी होगा तब आपका जो इंटेस्टाइन है इट विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम, बिकॉज विटामिन डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम योर इंटेस्टाइन। सो इट इज नेसेसरी दैट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बोन्स intake of vitamin D should be very much required, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस डिजीज विल बी देयर, राइट। एंड द बेसिक cause of this disease is the deficiency of vitamin D. Same goes to osteomalacia, but you know difference lies there. Difference lies there that this rickets is generally occurred in children. रिकेट्स जो है वो चिल्ड्रन का डिजीज है, ऑस्टियोमलेशिया इज फॉर एडल्ट्स, ठीक है। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है, नंबर 1। नंबर 2, गोइटर की बात कर लेते हैं। गोइटर जो है वो किसका डिजीज है? थायराइड ग्लैंड का। गोइटर जो है किसका डिजीज है? थायराइड ग्लैंड का, है ना। आयोडीन की कमी से होता है। अगर आपका आयोडीन इनटेक लेस है तब it will result into the disease goiter. And what is basically goiter? It is the enlargement of the thyroid gland. क्यों enlarge हो जाता है? जब आयोडीन की आपकी बॉडी में कमी होती है तो thyroid cells are actually able to get the iodine from everywhere of your body. तो उस प्रोसेस में the thyroid cells or thyroid follicles are little bit protruded out. तो उस protruded out की वजह से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका नेक थोड़ा सा बाहर आ गया। Enlargement of thyroid gland takes place, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से it is takes place, the disease will be goiter. Beriberi is due to the deficiency of vitamin. It is a deficiency of vitamin disease and this is vitamin B. तो हमें ये ध्यान रखनी है बात, ठीक है। बेरी बेरी विटामिन की डेफिशिएंसी से होगा। रिकेट्स भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होगा, बट द रीजन इज द लैक ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट इन योर बॉडी, क्योंकि विटामिन डी हेल्प्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर विटामिन डी प्रेजेंट नहीं है तो आप कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से दिस डिजीज विल टेक्स प्लेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। Chymotrypsin acts on, very simple, n number of time I have told you this, simple, I guess everybody knows the answer। बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर? Chymotrypsin किस पे एक्ट करता है, कौन से न्यूट्रिएंट पे एक्ट करता है? Chymotrypsin कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स और स्टार्च। Chymotrypsin, trypsin, procarboxypeptidase, these are the enzymes present in your pancreatic juice, है ना, which digest proteins. Absolutely, Kush is correct, Tanish is correct. तो काइमोट्रिप्सिन एक्चुअली हमें एक बात और भी ध्यान रखनी है, काइमोट्रिप्सिन की फॉर्म में नहीं सिंथेसिस होता, रादर इट इज काइमोट्रिप्सिनोजिन, ठीक है। तो ये इसका एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म है, इट विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, नंबर 1। सो हाउ इट कन्वर्ट्स इनटू द इन इट्स एक्टिव फॉर्म, that is chymotrypsin
कैसे कन्वर्ट होगा, किसकी मदद से कन्वर्ट होगा? यस, बता सकता है मुझे क्लास में से कोई? आई है इन द प्रीवियस सेशन आई मस्ट हैव टोल्ड यू दिस थिंग इन बिकॉज देयर वाज अ क्वेश्चन इन द KVPY ओनली previous years. So I have told you that the chymotrypsinogen is an inactive form of enzyme. It converts into active, that is chymotrypsin, with the help of the another enzyme. Can you name the enzyme? Anybody in the class? Yes, बता सकता है मुझे कोई? I have told you in some session, I guess. No. Chymotrypsinogen converts into chymotrypsin with the help of the enzyme trypsin only. है ना? सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन गेट कन्वर्ट्स इनटू ट्रिप्सिन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम दैट इज एंटेरोकाइनेज व्हिच इज बीन सिचुएटेड. आपका जो ये ट्रिप्स, यस कुछ एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा. तो ये ट्रिप्सिनोजन, एक्चुअली ट्रिप्सिन भी अपनी इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसिस होता है, दैट इज ट्रिप्सिनोजन. सो दिस ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट्स इनटू ट्रिप्सिन. कुछ ने हमें बिल्कुल ठीक बताया, इट इज एंटेरोकाइनेज, है ना. नाउ दिस ट्रिप्सिन के दो फंक्शंस हमको मालूम चल गए इसकी वजह से, दैट ऑब्वियसली इट इज द मेन एंजाइम विद डाइजेस्ट प्रोटीन एंड इट आल्सो एक्ट एज द ऑटो कैटलिस्ट व्हेन इट कन्वर्ट्स द इनएक्टिव फॉर्म एंजाइम इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म. सो chymotrypsinogen will also convert into chymotrypsin in the presence of trypsin. ध्यान रखनी है हमको ये बात. And all these enzymes, all these means this chymotrypsin, trypsin, and one more is carboxypeptidase. All these enzymes which is present in your pancreatic juice is going to digest the proteins. They will going to digest the proteins and break down into its your simpler form. Right? हम ध्यान रखेंगे ये बात. Next पे आ जाते हैं. Vermiform appendix is made up of. किस चीज से बनी है? I mean, is this striated muscles? Is this excretory tissue? Or it is lymphatic tissue? Or is it stem cells? Yes, what will be the answer बेटा? क्या किस चीज से बना है आपका अपेंडिक्स? देखो अपेंडिक्स जो है आपका, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, it is divided into three parts. We know that cecum, colon and rectum. तो cecum का जो part है आपका large intestine, वहीं पे ये structure present होता है just nearby cecum, that is vermiform appendix. ठीक है. तो appendix is basically which kind of tissue? It is a lymphatic tissue. It is neither striated muscles nor excretory tissue and not even stem cells. That we know, obvious, right? So it is basically lymphatic tissue. तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ योर बॉडी. लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से ऑर्गन्स होते हैं? जहां पर आपके लिम्फोसाइट्स, वन ऑफ द WBC, कौन सा WBC होता है ये WBC होता है ए ग्रैन्युलोसाइट, है ना. So this is one of the A granulocyte present as WBC, and this lymphocytes का maturation, देखो bone cells, I mean blood cells कोई भी हो आपके bone marrow में ही form होंगे, because that is the chief site of the formation of the blood. Formation bone marrow में है, but then इसका maturation and proliferation and differentiation, मतलब it is differentiated to perform its function. This is what we call it differentiation. तो maturation इसका कहाँ होगा? Primary lymphoid organ. ठीक है. But then proliferation and differentiation will takes place in secondary lymphoid organ. तो appendix का जो main function establish होगा, differentiate होगा, because this is one of the lymphatic tissue, so that is why lymphoid organ में होगा. कौन से lymphoid organ में होगा? Secondary lymphoid organ. And this secondary lymphoid organ में क्या होगा? आपके lymphocytes will is going to mature, proliferate and differentiate. ठीक है. एक बात हमें ये भी ध्यान रखनी है आपको, जैसे कि हम अपेंडिक्स की बात कर रहे हैं कि अपेंडिक्स इज अ लिम्फेटिक टिश्यू, बट यू नो व्हाट अपेंडिक्स इज टर्म्ड एज, इट इज रेफर्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन. वेस्टिजियल क्या होता है अब ये पता होना चाहिए. अपेंडिक्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज यू नो वेस्टिजियल इज समथिंग विच हैज वंस फंक्शनल बट नाउ इट हैज नो फंक्शन इन योर बॉडी.
with the changing of environment or with the adaptation to the new environment, this some few organs of your body has actually no function. It becomes functionless now, and appendix is one of those organ. That is why it is termed as vestigial organ. हम ये नहीं बोलेंगे कि वो बकवास है, कोई काम नहीं है उनका. हाँ, अभी के लिए कोई काम नहीं है, but once upon a time it was functional, but now it has no function in your body. ऐसा क्यों हो गया? With the adaptation to the new environment. So some organs of your body becomes functionless, and those organs are called as vestigial organs, and appendix is one such organ. ठीक है, फिर भी हम इसको क्या बोल रहे हैं? लिम्फेटिक टिश्यू, है ना? तो लिम्फेटिक टिश्यू हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? लिम्फेटिक टिश्यू हमें प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी. These are actually these are actually forms the basis of immunity. जितने भी आपके lymphoid organs हैं, they are the part of immunity, right? तो अगर ये immunity provide कर रहा है हमको, और मैं आपसे बोल रही हूँ कि ये vestigial organ है, फिर तो ये गलत बात हो जाएगी, हमारी immunity down हो जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं होगा. Why I am calling this vestigial organ? क्योंकि जब तक ये आपकी body में है, it will be a part of your immune system and it will provide immunity to you because it consists of lymphatic tissue. But if it is removed from the body, इसके removal को क्या बोलते हैं हम? It is called as appendectomy. तो अगर आपकी बॉडी से ये पार्ट निकल गया, कोई भी रीज़न हो, इन्फेक्शन हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई इसमें, तो अगर ये पार्ट निकल गया तो भी आपकी इम्यूनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दिस सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन विल नॉट इफेक्ट योर इम्यूनिटी. दैट इज व्हाई वी से इट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन. ठीक है, दैट मीन्स एज सून एज इट रिमेन्स इन योर बॉडी, इट विल बी अ पार्ट ऑफ योर lymphoid organ, secondary lymphoid organ, but if it is being removed from the body, it is not going to, affect your immunity in any way. That is why we are saying it is called as vestigial organ. ठीक बात है. चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन, वेरी सिंपल. कहाँ पे? बॉडी एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में डाइजेशन कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं. द मोस्ट प्रॉक्सिमल वन इज डिओडेनम, देन इज जेजुनम एंड देन इज इलियम. तो आपका जो इलियम पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें आपका डाइजेशन कंप्लीट होता है. हम ये बात ध्यान रखेंगे. द डाइजेशन कंप्लीट्स इन द इलियम पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, डिओडेनम भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, बट देन इट इज नॉट द आंसर. रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, एंड स्टमक वी नो इज द चीफ साइट ऑफ द डाइजेशन ऑफ proteins. So your digestion is completed in the ileum part of the small intestine, right? चलिए, moving on to next one. One of the following is not an enzyme of digestive system. है ना, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम नहीं है. इनमें से कौन सा ऑप्शन? लेट्स चेक. फर्स्ट इज सेइंग ट्रिप्सिन. ये तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था, है ना. ये तो हमारा एंजाइम है दैट डाइजेस्ट प्रोटीन. अमाइलेजेस ऑलवेज डाइजेस्ट कार्ब्स. किसी भी तरह का अमाइलेज हो, वेदर पेनक्रियाटिक अमाइलेज, गेस्ट्रिक अमाइलेज, लिंगुअल अमाइलेज, है ना, कोई भी आपका अमाइलेज होगा, पेनक्रियाटिक हो, चाहे सिलेवरी अमाइलेज हो, चाहे इंटेस्टाइनल अमाइलेज हो, इट विल ऑलवेज डाइजेस्ट योर कार्ब्स. एक बात ध्यान रखनी है. तो यानी कि ये भी एंजाइम हो गया, ये भी एंजाइम हो गया. क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? नॉट एन एंजाइम. ये बात ध्यान रखनी है हमको. तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी नॉट द ऑप्शन. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, एंटेरोकाइनेज क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है. दैट मीन्स इट इज गोइंग टू एक्ट एज एन एंजाइम देयर एंड कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन. तो एंटेरोकाइनेज भी एक एंजाइम है. कौन बनाता है? डिओडेनम ऑफ योर इंटेस्टाइन, है ना. स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिओडेनम पार्ट है उसको सीक्रीट करता है आपका एंटेरोकाइनेज एंजाइम. ठीक है. एंटेरोगेस्ट्रॉन, दिस इज आवर आंसर. दिस इज नॉट एन एंजाइम. तो फिर क्या है ये अगर एंजाइम नहीं है तो? दिस इज वन ऑफ द हार्मोन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम.
ये क्या है? हार्मोन है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, एंड इट इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द डियोडेनम ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखनी है. एंड what it its function, you know, this is also called as GIP. What does that mean? That mean gastric inhibitory peptide. क्या बोलते हैं इसको? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. मतलब कि आपकी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम करता है. जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगी, अगर एसिडिक मीडियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा या गैस्ट्रिक जूस का रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपकी बॉडी में, उस वक्त दिस एंटेरोगेस्ट्रॉन विल सीक्रीट एंड विल इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. क्या करेगा ये? इट इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है. और ये कौन बनाएगा? डियोडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विल सीक्रेट दिस हार्मोन सो दैट द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस कैन इनहिबिट्स इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, दैट इज व्हाई वी से गैस्ट्रिक इनहिबिटर पेप्टाइड. ठीक है, तो ये दिस इज वन ऑफ द हार्मोन, इट इज नॉट एन एंजाइम. चलिए आगे देख लेते हैं. आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारा? यस, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स आर. फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन कौन से होते हैं? हाँ, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स आर A, D, E, K. So these are 4 fat soluble vitamins. B and C, these are water soluble vitamins. तो हमें हमारा ऑप्शन मिल गया होगा. If I am saying A, D, E, K, so these are, the option is this one. A, D, E are fat soluble vitamins because they are जिस तरह से fat because these vitamins are soluble in fats, that is why we say it is fat soluble vitamins. B and C are soluble in water, hence we call them as water soluble vitamins. ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे ये बात. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. सनशाइन वाइटामिन, वेरी सिंपल. कौन सा वाइटामिन होता है सनशाइन? हम कहते हैं धूप में बैठने से हमको ये वाइटामिन का सिंथेसिस करती है हमारी स्किन. तो ऐसा कौन सा वाइटामिन होता है विच इज बीन सिंथेसाइज्ड बाय द स्किन? यस, एवरीबडी शुड नो दैट. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बट यू शुड नो. बिल्कुल ठीक, तनिष, कुश, एवरीबडी इज राइट. इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स वाइटामिन डी. है ना, आवर स्किन सिंथेसाइज वाइटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following, which of the vitamins is essential for normal vision? नॉर्मल विजन के लिए कौन सा वाइटामिन हमें चाहिए? दैट इज फॉलिक एसिड, बायोटिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल. बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं बच्चे. कुछ retinol is the answer. Why retinol? Because you know there is a layer which is present in your eye that is called as retina. So basically this consists of the some cells which is called as rods and cones. So there this retina, the vitamin which is required for the vision, which is there required, that is called as retinol. है ना, this which synthesizes vitamin A also, and this is actually referred, this is a precursor of vitamin A. So that is why it is, and vitamin A, we know that we require vitamin A for the normal vision. So that is why the enzyme, the vitamin which is essential for normal vision is retinol. ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं. BMR for a normal human adult. What does BMR? BMR means बेसिक मेटाबॉलिक रेट. है ना, बेसिक मेटाबॉलिक रेट एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग का कितना होगा? कुछ इट इज नॉट 2000, इट इज लिटिल बिट हायर. तूने बता दिया. बेसिक मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू नीड अ डे, इन अ डे, so that you can perform your all the vital activities for your metabolic functions. There are calories which is required per day and which is around 1600 to 1800. तो 2000 भी नहीं लेंगे. अगर देखो 1600 ऑप्शन नहीं होता हमारा, कोई उससे ज़्यादा कैटेगरी दी होती, तब we can consider 2000. राइट बच्चे?
if there is more than 2000, जैसे 2000, 2500, 3000, 4000 दिया होता या 3500 दिया होता, तब हम 2000 कंसिडर कर सकते थे. लेकिन अभी हम क्या कंसिडर करेंगे, बिकॉज इट इज गिवन, सो इट विल बी 16,000 किलो कैलोरी पर डे, विच इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग टू परफॉर्म ऑल द वाइटल एक्टिविटीज और द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. ठीक है कुछ. So if it is more than 3000 given, then we can have in account 2000 kilocalorie per day, but then it is 1600 kilocalorie per day. Okay बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं. Next question says cholesterol rich diet is undesirable because it makes person obese. Obese, you know, again a kind of disorder. Okay बच्चे, you're right. It is the all of the above will be the answer. So obese क्या होता है? Obese मतलब कि obesity is kind of disorder when you have lots of food intake, जिसको बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है, बार बार खाने की आदत होती है, तब ऐसे लोगों को हम obese बोलते हैं. और जो है द डिसऑर्डर इज ओबेसिटी, है ना. सो मेक्स पर्सन ओबेस, येस एब्सोल्युटली. कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट ऑलवेज रिजल्ट इनटू अ अनडिजायरेबल डिसऑर्डर, दैट इज ओबेसिटी. कॉजेज हार्ट एलिमेंट्स, डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल आपकी कोरोनरी आर्टरी, विच इज वन ऑफ द आर्टरी विच इज गोइंग टू सप्लाई दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू योर हार्ट, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो जिससे आपकी हार्ट कोरोनरी आर्टरी कैन इवन ब्लॉक एंड और राइट, I mean it can even cause a clot into the blood circulation because of the deposition of the cholesterol in your artery, especially that is supplying to the blood to your heart. So that is why we say it can cause heart problems or ailments. Is difficult to remove it from the body. Yes, excess of cholesterol, if it is present in your arteries, definitely it will be a problem to remove it. So that means all the three options are correct. Our answer will be all of the above. That is our answer, है ना. कोलेस्ट्रॉल से हमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हमें कोलेस्ट्रॉल जितना कम हो उतना इनटेक करना चाहिए. ठीक है. ओके, इफ ऑल द बैक्टीरिया ऑफ इंटेस्टाइन डाई, है ना, then what will be the effect on body? यहाँ पे होएगा then what will be the effect on body. ठीक है, it will be what will be the effect on body. Okay, I'm writing here. Oh, what happened to this? Just a second. ठीक है, तो ये that comes in between. What will be the effect on the body? Men will feel tired all throughout the body. It will cause blindness. There will be no synthesis of vitamin B12 and vitamin K, or excretion will be affected. तो अब आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा अगर आपका इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है वो सारा मर जाएगा. अब देखो, वी नो दैट, हमने थोड़ा सा डाइजेशन के बारे में अगर हम जानते हैं, इंटेस्टाइन के बारे में जानते हैं, देयर इज अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना. तो देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया दैट शोज सिम्बायोसिस with the human of the with the intestine of the humans, है ना. तो हमारी intestine में, small intestine में, there are some bacteria present which actually show symbiosis. Now what does symbiosis means? Symbiosis means sorry, symbiosis means that both the organisms get benefited from each other, है ना. दोनों एक दूसरे से help ले रहे हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म. सो बोथ ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर. तो बैक्टीरिया हमारे लिए क्या करता है, जस्ट अ सेकेंड बेटा. यस, तो bacteria shows symbiosis. That means if it is showing symbiosis, it must have do something for us. So what is the function of bacteria which is present in the intestine? It synthesizes vitamins for us. ठीक है, and more appropriately, which vitamins for us? It is B12 and vitamin K.
ठीक है, तो ये दोनों वाइटामिन सिंथेसाइज होते हैं बैक्टीरिया की वजह से विच इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, एंड इन टर्न बैक्टीरिया derive the nutrition from the surface of our intestine. In turn, it derives the nutrition from the surface of our intestine. So both has mutual understanding, right? Yes, विटामिन बी जितने भी होते हैं, दिस इज एक्चुअली आपका जो लाइक फॉलिक एसिड की बात करूं जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, सो दिस इज वन ऑफ द विटामिन बी ओनली. तो B12 इज सच अ विटामिन विच इज काइंड ऑफ अ विटामिन बी ओनली. तो वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, विटामिन बी की अगर कमी होगी तो आपके ब्लड में प्रॉब्लम होगी, आप एनीमिक होंगे. क्या होंगे? कुछ ने मुझसे पूछा अभी कि मैम विटामिन B12 का क्या फंक्शन है. सो देयर इज अ एनीमिया दैट इज कॉल्ड एज pernicious anemia. So if vitamin B12 is less present in your bloodstream, you will result into this order. And there is one more factor also, you know, our ileum of intestine. Our ileum, हमने पढ़ा था, there are three parts present in your small intestine. तो ileum can absorb the vitamin B12 only in one condition. In your stomach, it is being secreted, that is called as Cassell's intrinsic factor. ठीक है, तो आपके स्टमक में एक फैक्टर सीक्रेट होता है, आपके गैस्ट्रिक सेल्स सीक्रेट करते हैं, and that gastric cells which actually stimulates the absorption of vitamin B12 through the ileum of your small intestine. तो अगर ये फैक्टर सीक्रेट नहीं हुआ किसी भी वजह से, आप गैस्ट्रिक्टोमी हो गई है, आपका स्टमक का कोई पार्ट इन्फेक्ट कर गया है और वो आपका स्टमक इज बीन रिमूव्ड. जब हम किसी भी टोमी की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने पूरा पार्ट एज अ होल निकाल दिया. छोटा सा पार्ट भी, अगर कोई हिस्सा भी आपके किसी ऑर्गन का रिमूव हो रहा है, तो एक्चुअली वी आर लर्निंग अबाउट टोमी ओनली, है ना. तो अगर उस कंडीशन में भी आपका ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फैक्टर नहीं सीक्रेट हो पा रहा, तो आपका विटामिन B12 सीक्रेट एब्जॉर्ब नहीं होगा बाय द इलियम ऑफ इंटेस्टाइन. और अगर ऐसा हुआ तो विटामिन B12 की कमी हो गई, एंड in deficiency of vitamin B12 you will result into a kind of anemia, that is pernicious anemia. ठीक है, कुछ समझ आ गई बात बच्चे? So vitamin B12 is very very important vitamin for you, ये समझ लो बात. And which is synthesized from one of the pathogen. यहाँ pathogen word I won't use because यहाँ पे वो उसकी pathogenicity नहीं show कर रहा, यहाँ तो वो हमारे लिए काम कर रहा है, कुछ हमारे लिए friendship की तरह, you know, microorganisms friends and foe, आप जानते होंगे ये बात. तो this is actually working as a friend for us and synthesizing B12. Number 1, vitamin K is again a very important. किसके लिए हेल्प करता है विटामिन के? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन बिकॉज इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, है ना. आपका ब्लड, अगर आपको कोई इंजरी हुई है और इंजरी हुई है तो डेफिनेटली इट शुड लीड इनटू अ क्लॉट. अगर क्लॉट नहीं बनेगा, योर ब्लीडिंग इज कंटिन्यू, सो दैट कैन कॉज योर डैमेज और कैन लीड टू अ सर्टन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स टू यू. सो दैट इज व्हाई इफ देयर इज सम इंजरी टेक्स प्लेस, इट शुड बी क्लॉट विद इन 2, 3 और 5 minutes. और 5 minutes भी बहुत ज्यादा, आई एम सेइंग इट शुड बी इन ओनली 1 to 2 minutes, है ना. तो उस पर्पज के लिए विटामिन के इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, राइट. इसलिए हम विटामिन के को ना हेमोरैजिक विटामिन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हेमोरैजिक विटामिन, बिकॉज एक्चुअली इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, राइट. तो आपने क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जरूर पढ़ा होगा. whenever the injury takes place, one of the enzyme is synthesized by your platelets, that is called as thrombokinase. तो thrombokinase की मदद से prothrombin will convert into thrombin, and then this thrombin will convert fibrinogen into fibrin, and then fibrin will entangles with your RBCs and forms a clot. And throughout the process, vitamin K is going to help you. So these two vitamins are very very important vitamins for us for different functioning. This is for clotting of blood, and this vitamin B12 prevents us from being anemic. ठीक है.
तो ये दोनों ही vitamins बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, and these two are synthesized by the bacteria present in your intestine, shows symbiosis because we are getting these vitamins from bacteria, and in turn bacteria drives nutrition from the surface of our intestine. So what will be our option? आप तो खुद ही बता सकते हो, very simple, है ना? क्या होगा इसका आंसर अब? है ना? It will be definitely C. There will be no synthesis of vitamin B12 and vitamin K. And you know, इसकी वजह से, yes Tanish, it is C. You know, इसकी वजह से हम बोलते हैं कि vitamin B12 और vitamin K are actually ऐसे vitamins हैं जिनका rarely हमारी body में deficiency होता है. क्यों? Because of the presence of these bacteria present in your intestine. तो बहुत ही rare ऐसे होगा कि vitamins का आपकी body में deficiency होगा, right? So I guess that's all for the questions that I have brought for you from the topic nutrition. जैसे हमने आज nutrition से topic से questions discuss किए हैं. In the next session, I'll try to bring the second topic, that is respiratory system. Questions काफ़ी सारे, I guess अगली बारी थोड़े से और ज़्यादा question I'll take so that आपका maximum topic cover हो पाए from the questions, है ना? इसी तरीके से questions discuss करेंगे. Simultaneously, we'll have a complete view of the topic and किस type के questions आपके KVPY exam में आ सकते हैं. तो आज ये session यहीं पे ख़त्म करते हैं, right? आई गेस तुम लोगों को समझ आया होगा जितना भी हमने डिस्कस किया आज के सेशन में, एंड आई विल ब्रिंग मोर क्वेश्चंस ऑफ द टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द अपकमिंग सेशन of KVPY, and through the questions only, through the MCQs only, we'll learn the topic in detail. That's all for today's session. I guess आप लोग को जितना भी हमने आज डिस्कस किया, it will be fruitful for you, and if in any way it is fruitful to you, please do like it and subscribe it, and that's all for today's class. Thank you all.